جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں، میں ایک نہیں ہوں۔ ایک اس جسم میں، اس خون میں، اس بت میں کھڑا ہوں، دوسرا آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں، آپ کے بت میں کھڑا ہوں۔ بھٹو عوام کی آواز تھے، وہ مسلم امہ کے قائد بنے، انہوں نے تیسری دنیا کی رہنمائی بھی کی۔ بھٹو مظلوم عوام کی امید تھے، انہوں نے عوام کو ان کے حقوق کا شعور بخشا، ان میں نئی روح پھونکی، ان کے جذبہ تعمیر کو فروغ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عامیت کے اندھیروں میں جمہوریت کی شمع روشن کی، وہ سامراج کے آگے دیوار بنے، جب ان کی آواز ابھری تو زمانے پر چھا گئی۔ اس زمین اور اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دوسری شادی 8 ستمبر 1951 کو کراچی میں بیگم نصرت بھٹو سے کی۔ 1953 میں بے نظیر بھٹو، 1954 میں مرتضیٰ بھٹو، 1957 میں صنم بھٹو اور 1958 میں شاہنواز بھٹو نے جنم لیا۔ 1962 میں وہ وزیر خارجہ بنے اور ملک کو سامراجی طاقتوں کے تسلط سے نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 10 جنوری 1966 کو صدر پاکستان محمد ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان تاشقند معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ عوامی امنگوں کا عکاس نہ تھا۔ بھٹو نے اس کی شدید مخالفت کی، وہ وزارت سے مستعفی ہو گئے اور ملک کی تحریک چلائی۔ وہ جہاں جاتے پہلے ہی سے عوام کا ایک سمندر ان کا منتظر ہوتا تھا، نوجوان ان کی قوت بنے۔ بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر، غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر۔ لاہور وہ شہر ہے جہاں بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 میں ملک کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بھٹو نے 5 حلقوں سے کامیابی حاصل کر کے عوامی مقبولیت کی نئی تاریخ لکھی۔ انیس سو 71 کی جنگ میں ملک کا مشرقی حصہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو ملک کی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پہلے صدر اور پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ بھٹو 20 دسمبر 1971 کو ملک کے چوتھے صدر بنے۔ انہوں نے 14 اگست 1973 کو ملک کے 9ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وہ 5 جولائی 1977 تک برسر اقتدار رہے۔ یوں انہوں نے تقریباً 5.5 برس قوم کی خدمت کی۔ 1971 میں بھٹو کو اقتدار ایک ایسے وقت میں سونپا گیا تھا جب ملک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے المیے سے گزر رہا تھا۔ ہم دنیا میں تنہا ہو کر رہ گئے تھے، تمام مستحکم ادارے تباہ ہو چکے تھے، 92,000 فوجی دشمن کے قید میں تھے۔ اس خطے کا تقریباً 5,000 مربع میل رقبہ دشمن کی تحویل میں تھا، 12 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے تھے، پوری قوم ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی تھی، ملک کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 ممالک کے طوفانی دورے کیے اور ٹوٹے رشتوں کو دوبارہ جوڑا۔ انہوں نے قوم کا مورال بلند کیا، ان کا جذبہ تعمیر بیدار کیا۔ کم سے کم وقت میں جنگی قیدیوں کی واپسی ان کی اولین ترجیح تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو بھارتی حکومت سے مذاکرات کرنے 28 جون 1972 کو لاہور سے شملہ روانہ ہوئے۔ بے نظیر بھٹو بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ پاکستان کی پوزیشن انتہائی کمزور تھی۔ 6 برس پہلے میدانوں میں جیتی ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر ہار دیا گیا تھا، لیکن بھٹو میدان میں ہاری ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر جیتنے کے خواہش مند تھے۔
2 जुलाई 1972 को शिमला माहदे पर दस्तखत हुए। भुट्टो ने माहदे के दौरान कौम के वकार को पेश नजर रखा और कुछ खोने के बजाय बहुत कुछ हासिल कर लिया। दुआ करें कि हम कामयाब रहें, असूलों पर पाबंद रहे, कोई मसलत नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि आप इस मुलाकात के नतीजे के साथ खुश हैं, नाराज ना हो सकते हैं। अगर आप नाराज हैं तो कहो मुझे, अब भी हम कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। हम कहते नहीं, हमें अपने इलाके नहीं चाहते। खुश हो के नाराज हो भाई, खुश है। लोग कहते हैं कि जी आप अवाम से क्यों पूछते हैं, अवाम की राय क्यों लेते हैं? अवाम की राय न लें तो फिर जमहूरियत का मकसद क्या होता है? एक तरफ से कहते हैं जी जमहूरियत के लिए जदोजहद करनी चाहिए, तो जमहूरियत महदूद सिर्फ असेंबली तक नहीं है। अवाम की राय में लेता रहूंगा, कोई नहीं मुझे रोक सकता है कि अवाम की आप राय न लें, और इंशाअल्लाह ताला मैं अवाम के साथ अपना राब्ता रखता रहूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के लिए ग्रां कदर कारनामे सरअंजाम दिए। 1960 की दिहाई में शुरू की जाने वाली आजाद और खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी के सिलसिले को दराज किया। बड़ी ताकत से दोस्ताना मरासिम, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात की उस्तवारी और बैरून मुल्क में पाकिस्तान के खोए हुए वकार की बहाली उनकी खारिजा पॉलिसी के रहनुमा उसूल थे। बाद में फौजी माहदे, सीटों से अलहदगी, साबिक मशरक़ी जर्मनी, अवामी जमहूरिया कोरिया, वियतनाम, गिनी बसाओ और कंबोडिया को तस्लीम करना इसी सिलसिले की कड़ी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ताल्लुकात की बहाली में ज़ाती सिफारती ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 31 जनवरी 1972 को अवामी जमहूरिया चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंचे का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। चीन ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी, फौजी और फनी इमदाद देने का ऐलान किया। ये दोस्ती वक्त की हर आजमाइश में पूरी उतरी और वक्त गुजरने के साथ मजबूत होती चली गई। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला, शराए कराकोरम और अब गवादर की बंदरगाह, हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती के हसीन नकूश में। भुट्टो के बरसरे इख्तियार आने के वक्त पाक रूस ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। मार्च 1972 में उनके दौरे रूस से बर्फ पिघलना शुरू हुई। वो अक्टूबर 1974 में दोबारा रूस गए। उस दौरे के नतीजे में रूस ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, आर्ट और सकाफत के शोबों में दस्ते ताउन दराज किया। पाकिस्तान स्टील मिल्स रूस और पाकिस्तान के दरमियान उसी खुशगवार दौर की निशानी है। उसका संग बुनियाद 30 दिसंबर 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही ने रखा। भुट्टो ने पाक अमेरिका ताल्लुकात भी बेहतर बनाए। सितंबर 1973 में उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। उस दौरे में सदर रिचर्ड एम निक्सन ने पाकिस्तान की यकजहती को अपनी खारजा पॉलिसी का अहम सुतून करार दिया। 1975 में वो एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर गए और सदर जेराल्ड फोर्ड से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। एक इस्तकबालिये में नायब सदर रॉकफेलर ने भुट्टो साहब को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अगस्त 1976 में अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंगर के दौरे अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ही ने राह हमवार की और वहां नई हिकमत अमली का आगाज हुआ। इसीलिए बरतानिया के साबिक सेक्रेटरी खारजा डेविड अवान ये कहने पर मजबूर हुए, अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की पसपाई के सिफारती असबाब भुट्टो ही के पैदा करदा थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के जितना करीब आया उतना खुद पाकिस्तान को फिर कभी हासिल न हो सका। फरवरी 1974 में लाहौर में मुनक़दा दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस इस्लाम की निशत सानिया साबित हुई। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने कई इस्लामी ममालिक के दौरे किए। उस कॉन्फ्रेंस में 37 बरादर इस्लामी ममालिक के रहनुमा शरीक हुए। 1973 का आईन भुट्टो का एक अहम कारनामा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ 4 माह बाद अप्रैल 1972 में इस सरजमीन ने बे आईन को पहले उबूरी आईन का तोहफा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के दिफा को नाक़ाबिल तस्ख़ीर बनाने का अज़्म रखते थे। उन्होंने पाक फौज की तंज़ीम नौ की, मुल्क की दिफाई क़ुव्वत बढ़ाई। मशरक़ी हिस्से में 3 डिवीज़न फौज के खात्मे के बाद 6 डिवीज़न नई फौज तश्कील दी।
तीनों मुसल्लह फौज को जदीद हुदूद पर उस्तवार किया। दिफाई शोबे में किफालत के लिए एक क्रैश प्रोग्राम शुरू किया। दूसरे ममालिक से बड़े पैमाने पर असलहा हासिल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभालने के 11वें रोज ही 31 दिसंबर 1971 को एटमी तवानाई कमीशन का चार्ज खुद संभाल लिया। 22 नवंबर 1972 को कराची में इस्लामी दुनिया के पहले एटमी बिजली घर फैनॉफ यानी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उन्होंने मुल्क के नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कहूटा में वाक़ई एटमी रिसर्च लेबोरेटरीज का डायरेक्टर मुकर्रर किया। अब ये डॉक्टर A.Q. खान रिसर्च लेबोरेटरीज कहलाती है। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनके साथियों ने खामोशी से तहकीक जारी रखी। इन्हीं काविशों के नतीजे में 28 मई 1998 को पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत बना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक जागीरदार घराने में आंखें खोली और रईसाना माहौल में परवान चढ़े, लेकिन उसके बावजूद वो गरीबों के इंतहाई हमदर्द थे। उन्होंने अपने जिगरगोशे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक खत में लिखा था, तुम्हारे दादा ने मुझे फख्र की सियासत सिखाई और तुम्हारी दादी ने मुझे गुर्बत की सियासत का सबक दिया। मुल्क के गरीबों ने भुट्टो को अपनी उम्मीदों का मरकज बनाया। उन्होंने सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर अवाम के दरमियान पहुंचाया। भुट्टो अवाम थे और अवाम भुट्टो। भुट्टो की सियासत अवामी सियासत थी, उनकी हुकूमत अवामी हुकूमत थी, उनकी सियासत का महवर आम आदमी था। अवाम को अपनी अहमियत का एहसास दिलाया और अवामी शऊर बेदार किया। उन्होंने मजलूमों को जबान अता की, उन्हें हक लेना सिखाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 2 मरतबा ज़रई इस्लाहात करके बेज़मीन हारियों को जमीन का मालिक बनाया। भुट्टो की लेबर इस्लाहात को मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहात कहा जाता है। उन्होंने मजदूरों को वो सब कुछ दिया जिसके मुतालिक वो सोच भी नहीं सकते थे। यूनियन बनाने और इज्तिमाई सौदेबाजी का हक, ग्रुप इंश्योरेंस, पेंशन और मुनाफे में हिस्सा, ये काम शायद भुट्टो ही कर सकते थे। उनके दौर में लाखों अफराद ने मशरक़ वस्ता, यूरोपीय ममालिक और दीगर खित्तों में मुलाजमतें हासिल की। जमहूरियत का कारवां रुका नहीं, फिर आगे बढ़ा। अब भुट्टो की तस्वीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मीर कारवां थी। भुट्टो ने अपने आखिरी दिनों में पेशगोई कर दी थी कि मेरी बेटी मेरा मिशन पूरा करेगी। 21 जून 1978 को भुट्टो ने अपनी लख्त जिगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर तहरीर किया, प्यारी बेटी, मैं तुम्हें सिर्फ एक पैगाम देता हूं। ये पैगाम आने वाले दिनों का पैगाम है, तारीख का पैगाम है। सिर्फ अवाम पर यकीन रखो, उनकी नजात और मसावात के लिए काम करो। अल्लाह की जन्नत तुम्हारी वालदा के कदमों तले है और सियासत की जन्नत अवाम के कदमों तले है।